हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को माउंटेन रीजन्स टॉपिक से स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो से हम लोग को माउंटेन रीजन कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winter. There is a large variety of plants and animals living in the mountain region. Have you seen the kind of trees shown in figure 6.6? If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shape very different from these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptation to survive on the mountains. Animals living in the mountain regions are also adapted to the conditions there. Figure 6.7. They have thick skin for fur to protect them from cold. For example, yaks have long hair on keep them warm. Snow leopards has thick fur on its body, including feet and toes. This protect in feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. As we go up in the mountains regions, the surroundings changes and we see different kinds of adaptation at different heights. तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या है कि जो स्नो रीजन होता है वहाँ पर वहाँ पर आप लोगों ने वो वहाँ का जो मौसम होता है वो वाइंडी, बहुत ही हवा चलती है और जो एरिया होता है वहाँ पे स्नोफॉल वाटरफॉल होता ही रहता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता ही रहता है। तो आप लोगों ने जो फिगर 6.6 है इस टाइप के आप लोगों ने वहाँ पर कुछ ट्रीज देखे होंगे। ट्रीज कैसे होते हैं? ट्रीज कोन शेप के होते हैं और ये नेचुरली वहाँ पर ग्रो होते हैं और वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, माउंटेन्स है, वो सब भी इन्हीं जो हैबिटेट है इनका, जो भी कंडीशन है उससे अडेप्टेड है। यानी जो भी इनके एनिमल्स हैं उनका अडेप्ट, ये सब इस कंडीशन से अडेप्टेड है। इससे क्या होता है कि जो जैसे कि वहाँ पर याक रहता है माउंटेन रीजन में, तो माउंटेन रीजन में क्या ठंडी भी लगती होगी और स्नो भी गिरती होगी। तो वहाँ पे उनके लिए क्या है, वहाँ पे उनके लिए है तो जो याक है उसके बाल निकले होते हैं, मतलब कि बहुत सारे बाल होते हैं उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से वो वार्म रहता है, गर्म रहता है उसकी बॉडी। और जैसे लेपर्ड्स हो गए, लेपर्ड्स में क्या होता है स्नो लेपर्ड्स में कि उनके बहुत ज़्यादा फर होते हैं जिसकी वजह से वो वार्म रहते हैं। और जो वहाँ पे गोट्स रहती हैं उनके हूफ्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो उससे क्या होता है वो काफ़ी हूफ्स की वजह से वो काफ़ी अच्छी तरीके से दौड़ लेती है रॉकी स्लोप्स में भी। और जो उनके माउंटेनस रीजन्स है वहाँ भी उनके जो सराउंडिंग्स है उनसे भी वो लोग अडेप्टेड है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो हमारा टॉपिक था माउंटेन रीजन ये तो ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer, figure 6.8. How are the eyes placed in the face for
these two animals? Uh, are they in the front or on the side of the face? Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside. The toes do not features of a lion help it in any way to uh, to survive. It is light brown colored, helps to hide in dry grasslands when it's hunt for prey animal to eat. The eyes in front of the face allow to it have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grassland. It has different teeth. It has different teeth for chewing hard plants, stems, and of the forest. A deer needs to know about the presence of predators. Animals like lion that make it their prey. In order to run away from them and not become their prey, it has long ears to hear movements of predators. The eyes on the side of its head allow to look in all directions for danger. The speed of deer helps them to run away from the predators. There are many other features of a lion, a deer, or other animals animals and plants that help them to survive in their habitat. तो जो ग्रास लैंड होता है, तो ग्रास लैंड में कौन कौन रहते हैं? ग्रास लैंड में जैसे लॉयन रहता है, और ग्रास लैंड लॉयन हो गया, डियर हो गया, ये सब कहाँ पर रहते हैं? ये सब रहते हैं प्लांट, ये सब कहाँ पर? ये सब ग्रास लैंड में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका कलर है, हैबिटेट है, वो भी ग्रास लैंड से ही है। अब क्या है कि जो लॉयन है वो कैसा है? वो एक कार्निवोरस है, एक हंटर है, यानी कि वो शिकार करता है और फिर खाता है। तो शिकार करता है कैसे? तो उसका जो कलर है वो कैसा है? वो लाइट ब्राउन है, उसके क्लॉज है। इनकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली जो ग्रास होती है उनमें छुप जाता है और कोई भी उसे देख नहीं पाता। और जो लॉयन है वो क्या है? वो है एक प्रे। लॉयन प्रे करता है। अब आप लोग वो वाला प्रे मत समझिए कि वो प्रार्थना करता है, वो इस तरीके का प्रे करता है, मतलब कि प्रे मतलब कि वो हंटर, यानी कि ऐसे लोग जो कि खाना खाते हैं। इधर देखिए लिखा भी होगा प्रे का मतलब। तो जो प्रे है वो एनिमल टू ईट, मतलब कि किसी को प्रे बना लेना अपना। प्रे मतलब कि उसी को खाना है, तो वो होता है लॉयन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो जो अपना प्रे बना लेता है, ठीक है। तो फिर ये जो लॉयन हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद अब क्या रहता है? एक वहाँ पे एक और एनिमल रहता है, कौन? डियर। तो डियर क्या होता है कि डियर को जो डियर होता है, हाँ, तो जो डियर होता है उसका लाइट कलर होता है और उसकी जो कान होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो हर तरफ देख पाता है और मतलब सुन पाता है। यानी कि कोई भी मूवमेंट हुई किसी भी प्रेडेटर की, यानी कि प्रेडेटर मतलब कि एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे, यानी कि जो उसको हंट करने आ रहा है, उसको शिकार करने आ रहा है, तो वो उसकी मूवमेंट को अच्छी तरीके से मतलब कि सुन लेता है जल्दी से। उसके कान इतने बड़े बड़े होते हैं और उसकी आईज ऐसी होती ताकि वो चारों मतलब कि चारों डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में वो इजीली देख पाता है अपनी आईज की मदद से। तो ये जो चीज़ें मिली है इन लोगों को, ये तो नेचुरली मिली है, और जिस अडेप्टेशन में लोग रहते हैं उसके हिसाब से इन्हें मिली ताकि वो इस अडेप्टेशन में सरवाइव कर सकें। तो इसी तरीके के कुछ और भी ऐसे अडेप्टेशन है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टॉपिक है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो ये जो टॉपिक है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।